Hello, this is Chandan Kumar Jha, Assistive Faculty. Hello and welcome to Crux of Assistive. I am going to take the classes on the class 9th Geography, that is India and its size and location, and in which we will read about the size of India and the location, its location and the bordering countries to which its border touches. First of all, I am going to understand about the India's and its size and location. India is 7th largest country. We all are known to this fact that India is 7th largest countries of the world, and its size is 32 lakhs 87,263 kilometer square, and the countries which is larger than the India, their list is written at here: Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia, India, Argentina, Kazakhstan, Algeria. All are the countries, top 10 countries of the world, in which India occupies the 7th position in area, and its location location of India is 8 degree 4 minute north to 37 degrees 6 minute north, and at 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. It is the location, and I would like to inform to all of you that location we will study in a detail about the location of India, because we know that the significance of latitude and longitude is that latitude defines the temperature, flora and fauna of any particular places, but the longitude decides the time and the date of any particular places. Therefore, we will illustrate these facts how India's position are located in a such a way. I will also know about these facts, and we will learn about the pointing out the location of any place on the globe. We will read about this. After that, I am going to read about the countries. It's all are the facts. We all are known to this. We must know about all this. After that, I am going to read about the name of the countries which is touching the boundary of the India. I am going to read about them. I am going to read about the name of the countries which is touching their boundary is touching to India. That is Bangladesh, Bangladesh 496.7 किलोमीटर, Bangladesh, China 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3327 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 kilometers, and the Afghanistan 106 kilometers. India, it's all are the name of the nation whose boundary is touching to India: Bangladesh, China, Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan and Afghanistan. One of the biggest country whose boundary is touching to India, that is Bangladesh. How much kilometer? 4096.7 kilometer. It's all are in order, and for remembering these facts we have to know about one tricks. We don't have to mug up these facts. For the sake of convenience, I am going to write one tricks. The tricks is I am going to write down
द ट्रिक दैट इज बचपन में MBA, BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M फॉर म्यांमार, V for Bhutan and A for Afghanistan. It is the trick. We have to just remember it. And after that I am going to read about the state who is touching the Bangladesh. I am going to read about them. बांग्लादेश को टच करने वाली बाउंड्री को, बिकॉज आई एम गोइंग टू कीप द लैंग्वेज ऑफ these classes, that is bilingual, Hindi and English both. If any students who is unable to understand the English, therefore I opt language bilingual, English as well as Hindi. After that I am going to read the state name whose boundary touching to बांग्लादेश. बांग्लादेश की सीमा को टच करने वाले जो स्टेट है उसका नाम पढ़ने जा रहे हैं. बांग्लादेश की सीमा को टच करने वाले जो है उसका नाम लिखने जा रहे हैं. तो उसका ट्रिक है, अब मिजोरम से मैत्री, अब से असम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा. It's are the name of the state whose boundary is touching to Bangladesh. The state name whose boundary is touching to, I am going to read about the China. China. For understanding the name of the states whose boundary is touching to China, for understanding them we have to remember one tricks, that is जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा. ये फैक्ट्स है, उनको याद रखना है कि चाइना को टच करने वाले जो स्टेट है उसका नाम कैसे याद रखेंगे. काफ़ी बच्चे को प्रॉब्लम रहता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले ट्रिक लिख दिया, मैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए जा रहा हूँ. तो जम्मू से जम्मू कश्मीर हो गया, J&K. सिपाही से हो गया सिक्किम, सी है वहाँ पर तो सिक्किम. अरुण से अरुणाचल प्रदेश. हिमालय से हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से उत्तराखंड. इसके बाद हमको पढ़ना है, अभी जैसे मैंने इधर ट्रिक्स लिखा था, बचपन में MBA. तो बांग्लादेश पढ़ लिया, चाइना पढ़ लिया, पाकिस्तान को मैं पढ़ रहा हूँ अभी. तो पाकिस्तान को टच करने वाला जो
स्टेट का नाम है वो हम पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान को टच करने वाले जो स्टेट हैं उसका नाम कैसे याद रखेंगे, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, उसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखा है, उसका हम नाम अभी लिखेंगे। पाकिस्तान को टच करने वाले जाए, पाकिस्तान ऊपर में लिख देते हैं, जिससे कि याद रहे पाकिस्तान को टच करने वाला जो स्टेट है वो है पंडित गुजरात। ये ट्रिक है याद रखने के लिए। पंजाब हो गया, गुजरात से गुजरात हो गया, इसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, J&K जम्मू कश्मीर हो गया, इसके बाद राजस्थान हो गया। ये स्टेट हो गया पाकिस्तान को टच करने वाला। इसके बाद है नेपाल को टच करने वाला जो स्टेट है वो, इसका ट्रिक है SUU शुबू, SUBBU शुबू। S से सिक्किम, U से एक यूपी हो जाएगा, एक B से यहाँ पहले वेस्ट, एक B से बिहार, एक B से वेस्ट बंगाल हो जाएगा। याद करने के लिए ट्रिक बनाया, ये जरूरी नहीं है कि इस हर एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकले, याद करने के पर्पज से बनाया गया है। उत्तराखंड। इसके बाद आता है म्यांमार, तो इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब है म्यांमार को टच करने वाले जो स्टेट है उसका नाम, नेपाल तक मैंने पढ़ लिया, इसके बाद म्यांमार को टच करने वाला जो है म्यांमार को टच करने वाला जो स्टेट है इसका है अरुणामामी, मतलब अरुणाचल, अरुणा में अरुणाचल प्रदेश, मामी तो माँ से मणिपुर, और मी में ना से नागालैंड, अरुणा और ना है वहाँ पर, तो ना से नागालैंड भी हो जाएगा यहाँ पे, नागालैंड उसका छोड़ दिए हैं, नागालैंड हो गया। माँ मी मिजोरम, मिजोरम हो गया, ये हो गया म्यांमार का। इसके बाद है भूटान को, सीमा को, भूटान कंट्री को टच करने वाले जो स्टेट है उसका नाम कैसे याद रखेंगे, तो इसका है साब। S फॉर सिक्किम, A फॉर असम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, और B फॉर हो गया मेरा B फॉर शाब है, तो भूटान को टच करने वाले ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा मेरा, वेस्ट बंगाल। इसके बाद है अफगानिस्तान का नो ट्रिक है, अफगानिस्तान का नो ट्रिक है, इसका कोई ट्रिक ही नहीं, ये पाक ऑब्सेस्ड कश्मीर जो है POK उसका एरिया आता है यहाँ पर, लेकिन इंडिया POK को भी अपना हिस्सा मानती है, इसलिए 106 किलोमीटर जो इसका एरिया अफगानिस्तान का है उसको भी इंडिया अपना ही मानती है। इसीलिए ये मैंने पढ़ लिया कि जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट है और उसका नाम, और फिर बॉर्डरिंग स्टेट और बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है उसका नाम मैंने पढ़ा, ये टोटल मैंने पढ़ लिया। और कैसे याद रखें हम, इसको भी मैंने पढ़ लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। कैसे इंटरप्रेट करेंगे, मुझे सिर्फ एक बार इसको रिवाइज कर लेना है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार इसको रिवाइज करना है, देखना है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो को पॉज करना है और उसको फिर से एक बार उसको फिर से स्टार्ट करके फिर से उसको पढ़ लेना है, बस इतना ही करना है। ये मैंने पूरा चैप्टर लगभग खत्म। अब इसके बाद में कॉस्ट लाइन पढ़ना, मुझे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए बस कुछ फैक्ट्स बचे हुए हैं, उस फैक्ट्स को मैं पढ़ने जा रहा हूँ अभी। इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने पहले बोल दिया कि जो लैटिट्यूड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, आई विल रीड अबाउट इट इन डिटेल वे in another classes, because the longitude decides the date and the time of the particular places, but the latitude decides the vegetation, flora and fauna. Flora, it means that the plants which is found in a specified places, that is flora, and the fauna, the species that is found in the plants, and the animals that is found in a specific area, in a specific places, that is called fauna. It is decided by latitude, but the time and the date, that is decided by longitude. I will read about it in next chapter. I will also know about the how to find out the time. Therefore, I am going to read about the coastline.
India's coastline. The coastline, the length of the coastline of India. Length of the coastline. तो तट रेखा है जो समुद्र से लगने वाले जो है जो स्ट्रीट है उसका नाम। इंडिया का जो कोस्टलाइन है 7516.6 किलोमीटर आता है। इसको कैसे याद रखें, बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम, इसके लिए मैंने ट्रिक बना रखा हूँ। ट्रिक इसका क्या है कि जैसे गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ, ये इसका ट्रिक है। कोस्टलाइन जो समुद्र के तट के पास है, जो समुद्र का टच कोस्ट से टच करता है। गोवा हो गया, गू से गुजरात हो गया, गोंगू गुजरात। ता से तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया। उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, उससे उड़ीसा। आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, पौ से वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल हो गया यहाँ पे, ये भी आएगा। मौ से महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र। क से हो गया, आधा को वहां पर, तो उससे हो गया कर्नाटका। और के से हो गया केरला। ये स्टेट है जिससे इसका ये कोस्ट लाइन है जो समुद्र से इसका बाउंड्री टच करता है, ये मैं पढ़ लिया। इसके बाद इसमें पढ़ना है मुझे कि नॉर्थ टू साउथ में और ईस्ट टू वेस्ट में जो इसका लंबाई है वो, तो इसका ज़्यादा है, तो कितना है 3214 किलोमीटर। भारत जो फैला हुआ है नॉर्थ से साउथ में, मतलब इधर से इधर में, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में 3214 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन है। बट ईस्ट टू वेस्ट में 2933 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन, मतलब ये कम है, ईस्ट टू वेस्ट वाला कम है और नॉर्थ टू साउथ वाला ज़्यादा है। ये भी फैक्ट्स मुझे याद रखना है। इसके बाद मुझे एक फैक्ट्स जो याद रखना है और जो पढ़ना है वो मुझे पढ़ना है इक्वेटर के बारे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में थोड़ा एक ग्राफ में बना करके फिर मैं उसका नाम लिख देता हूँ और इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। इसके बाद इसका हम एक टेस्ट आयोजन करेंगे इस चैप्टर का। तो सबसे पहले मैं एक मैप बना रहा हूँ, एक ग्लोब बना रहा हूँ। ग्लोब पे मैंने लिखा 0 डिग्री जो होता है वो तो पता ही है कि ये लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड, द लाइन, द लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नॉन एज द इक्वेटर। आफ्टर दैट 0 के बाद आता है 23.5, 66.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ में हो गया, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में हो गया। ये 90 डिग्री नॉर्थ में हो गया, ये हो गया। फिर नीचे ऐसे ही आता है कि ये 23.5 डिग्री साउथ में हो गया, ये 66.5 डिग्री साउथ में हो गया, ये 90 डिग्री साउथ में हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो लैटिट्यूड है, जो लाइन स्टेट में है लाइन, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। हमेशा याद रखना है, हमको याद रखना है कि द इमेजिनरी लाइन विच इज इन ए हॉरिजॉन्टल स्टेट, विच इज एग्जिस्टिंग इन ए हॉरिजॉन्टल स्टेट, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। द 0 डिग्री is known as the 0 degree latitude is known as the equator. Equator divides the earth into 2 equal parts, and the northern parts is known as northern hemisphere and the southern part is known as southern hemisphere. And ऐसे ही करके इसमें 0 के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके 23.5 पर आया तो वो हो गया मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ये हो गया 23 और 24 के बीच में 23.5, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद आ गया मेरा आर्कटिक सर्कल। नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा आता है 23.5 पे। और फिर 66 जो नॉर्थ में जाएंगे, ये आता है मेरा अंटार्कटिका। अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिका जो अंटार्कटिक सर्कल हम लिख देंगे, ये आता है इसका। तो मुझे पढ़ना क्या है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला है, ये इंडिया के किस किस स्टेट से गुजरती है, इसको भी याद रखना है। इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है, तो हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। ये किस किस स्टेट से गुजर रही है वो हमको, तो इसका बस सिंपल सा इसका भी ट्रिक बना रखे हैं कि जिससे कि बच्चे को ज़्यादा फैक्ट्स ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें पूरे चैप्टर को पढ़ने में, लाइन बाय लाइन बस रीड कर लिए, समझ भी नहीं आ रहा है, याद भी नहीं हो रहा है, क्या है इधर उधर कर देते हैं, लिखना होता है। तो यहाँ पे हमको याद करने के लिए एक ट्रिक्स है कि जैसे मित्र पर गमछा
झार। ये 8 स्टेट है, 8 स्टेट है, उस 8 स्टेट से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है भारत से। तो इसमें मित्र से हो गया मिजोरम, हो गया मी से मिजोरम हो गया मिजोरम, त्रो से हो गया त्रिपुरा, पर है ना, तो पर में पौ से हो गया पश्चिम बंगाल कर देते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, इससे भी गुजरती है। और इसके बाद गौ से हो गया गुजरात, हो गया गुजरात हो गया, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, हो गया मध्य प्रदेश, हो गया मध्य प्रदेश या एमपी शॉर्ट में लिख देंगे। छत्तीसगढ़ CHATTIS छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद हो गया झारखंड, इस पर एक क्वेश्चन है उसको मैं करवा रहा हूं। और ये इसके बाद है राजस्थान, ठीक है राजस्थान। ये बात यहाँ का जो रॉ था, इसी रॉ से वहाँ राजस्थान कोई बनाना चाहे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, लेकिन मैंने लास्ट से बनाया, किसी एक से ही बनाएंगे। 8 स्टेट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पर एक क्वेश्चन है कि इस 8 स्टेट में किसका कैपिटल, किसके कैपिटल के बिल्कुल बीच से होकर या किसके कैपिटल से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो उसका आंसर है झारखंड का कैपिटल जो है, जो रांची, उससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल मिडिल से होकर या उस स्टेट के कैपिटल से होकर गुजरती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इसका हो गया। ये जो मेरा पूरा चैप्टर था उसके बारे में मैंने पढ़ लिया, और मुझे बस इतना ही इसमें फैक्ट्स याद करना है। ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया है। इसमें बस कुछ बचे हुए हैं, जैसे लक्षद्वीप के बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में, या कुछ उसका जो हम पढ़ेंगे इंदिरा पॉइंट के बारे में, इंदिरा कॉल के बारे में, उसको डिटेल से मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अब तब तक के लिए ये चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आई विल मीट टू यू विथ इन नेक्स्ट क्लासेस, एंड टिल दैट टाइम आई एम गोइंग टू जस्ट ऑफ द क्लासेस, एंड हेलो एंड बाय बाय, चलते हैं, आते हैं, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।